बीती रात फिल्म मासूम की हुई स्क्रीनिंग, जिसमें शामिल हुए कई सारे सितारे और फिल्म से जुड़े कास्ट एंड क्रू। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए एंड ऑफ कोर्स नमित सर who is the producer of the show. Him and myself have been very close to each other for the last many years. In fact, he was the one who sanctioned Jamai Raja when he was working in Z. So I, in many ways, owe my career to him. So I'm very fond of him, and I would like to say it on his behalf that there's a lot of mutual fondness when it comes to that. And I'm very excited to see the show. The trailer is looking excellent, and it's Baman sir's debut in the OTT space. So I'm really excited to see what comes out of it, and I'm quite sure it'll be a fantastic show. Yeah. He's a. There's no denying that he doesn't have to prove himself as an actor. He's a phenomenal actor, and it's a good actor can easily kind of slip into any sentiment, any emotion, any kind of genre or character. So he's done comedies very effectively. I'm sure that he will hit the ball out of the park with this one as well. From the last so many times we are hanging out, where we will be seeing you. So would you like to share something? It's very soon. There's something very interesting in the pipeline. Would you like to give something to the audience? I would love to do it, but I think I should just wait for the platform to talk about it. Lastly, any message for the fans? I just thank you from me and Sargun, both, that you made everything that we have done really shine, and thank you for making Saukan Sakne such a big hit, and that's about it. So just gratitude always. सर आपकी मस्ती कांड आई थी, लोगों को मुझे बहुत प्यार मिला उसका, तो आपकी नेक्स्ट मूवी का आने वाला है? नेक्स्ट बस अब कुछ दिनों के अंदर चर्चा करेंगे उसके बारे में, बहुत जल्द चर्चा करेंगे. So when we are going to see you and Sargun together, Me and Sargun together on screen, I don't know. Off screen तो हम लोग साथ में काम कर ही रहे हैं, by the virtue of the production house. So on screen तो अब कहना मुश्किल है. Let's see. जब ऊपर वाला चाहेगा तो. मासूम है क्या का मतलब है कि आप ही समझ लो क्या मीनिंग निकालना है इसमें. कौन मासूम है, कौन नहीं. मासूम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? मासूमियत, बचपना, इनोसेंस, या गिल्टी या नॉट गिल्टी, इतने बहुत अनेक उसके मीनिंग्स निकल सकते. देखने के बाद समझ में आएगा शायद कौन मासूम है कौन नहीं. सर हमेशा से आपका एक ऐसा रूप देखा है जहाँ हंसी मजाक होता है, ऐसा ही कोई कैरेक्टर देखा है, लेकिन ये कैरेक्टर बहुत सीरियस. आई थिंक ये गलत फहमी है. जो हंसी मजाक का जो रूप है वो मेरा रियल लाइफ में है, और दूसरा कि ऐसे दो या तीन ऐसे फिल्म्स है जो बहुत ही आइकॉनिक फिल्म्स बन गए, और उसकी वजह से एक लेबल हो जाता है. लेकिन मैंने बहुत सारी फिल्में की. आई हैव डन अ लॉट ऑफ फिल्म्स where I play a very serious, maybe even angry, maybe even vicious person. But because of these 2 or 3 films, वो रह जाता है. No problem. आखिर में एंड ऑफ द डे मैं एक एक्टर हूँ. मेरा काम है अनेक कैरेक्टर्स को पेश करना, और वही करता हूँ. अभी मैं बोलूँगा मैं सिर्फ हंसी मजाक का करूँगा हमेशा, क्योंकि I don't think that is I'm doing a disservice to myself as an actor. That's my belief. So if we talk about this story, like what this story is giving the message to the masses. I think इस स्टोरी में दो चीज़ें. एक बहुत ही इंट्रीगिंग मिस्ट्री सस्पेंस तरह की. there is a
very suspenseful feel to it. लेकिन you will come for the suspense. The suspense will hold you. लेकिन उसके अलावा एक family dynamic जो है, बाप बेटी, husband wife, बाप दूसरी बेटी, बाप बेटा, फैमिली में जो हर एक फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं, हर एक फैमिली में तरह तरह के पर्सनालिटीज़ होते हैं, पर्सनालिटीज़ क्लैश भी होते हैं। और जब ऐसा कुछ होता है जब बहुत ही मतलब गंभीर सिचुएशन हो, तो फैमिली के रिएक्शंस और भी गंभीर हो जाते हैं या और भी डेंजरस हो जाते हैं, और उनके रिएक्शंस सब लोग जितने पुराने गुस्से भी है वो बाहर उभर के आते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सब लोग। अभी कौन गलत है कौन सही है वो आज बताने में मतलब नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन आई थिंक व्हाट द पब्लिक विल सी एंड अंडरस्टैंड, they will see a story of a family. They will come to see the suspense. They'll stay for the family. सर फिर ये देखते ही ऐसा लग रहा है कि लोकेशंस बहुत अलग अलग हैं और ठंड के मौसम में ये पूरा शूट हुआ है। तो थोड़ी शेयर करें। एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा हुआ कि हमने चंडीगढ़ के आसपास हमने जितने भी लोकेशंस थे, बहुत सारे लोकेशंस थे, सो फ़र्क पड़ता है जहाँ पे मतलब सेटिंग हो वहीं पे अगर वहाँ पे शूटिंग करो, सेट लगाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात कि जो ये आप ठंडी की बात करें, अगर हम एक जैकेट पहने या कार्डिगन पहने तो वाकई में ठंडी लगती है, तो और एक रियलिस्टिक फीलिंग आ जाती है। एक्टिंग करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, उसमें कोई शक नहीं। प्लस एक ऑथेंटिसिटी होती है, एक जो वर्ल्ड उन्होंने बनाया, हमारे डायरेक्टर, हमारे शो रनर, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं गुरमीत, नमित और हमारे डायरेक्टर मिहिर देसाई, एक बहुत अच्छा वर्ल्ड बनाया उन लोगों ने। और उस वर्ल्ड में वहाँ जाके बस जाना, एक्टर का आधा काम आसान हो जाता है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्रिएटेड बाय दिस पीपल। तो ये है हमारी मासूम, आप देखिए 17 तारीख, उसके बाद ऊंचाई है सूरज बरजात्या साहब की फिल्म, जिसमें 4 दोस्तों की कहानी है, फ्रेंडशिप की कहानी है। अमिताभ बच्चन साहब, अनुपम खेर साहब, डैनी डेंजोंगपा साहब और मैं। तो इन इतने बड़े नामों के बीच मेरा नाम भी लिया जाता है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं भी शामिल हूँ इन 4 नामों में। मैं सेइंग दिस वेरी हम्बली। उसके अलावा हमारे सारिका जी है, नीना गुप्ता जी है, परिणीति चोपड़ा है, वंडरफुल स्टार कास्ट है, वंडरफुल फिल्म कंप्लीट है, दिवाली पर रिलीज़ होगी। उसके बाद मैंने एक सस्पेंस फिल्म की हमने हंगरी में शूट की थी, और वो अनाउंस नहीं किया तो मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन वी हैव वन मोर रेडी। और उसके बाद डंकी की शूटिंग मैंने 2 दिन बाकी रह गए। डंकी में सितंबर में शूटिंग करेंगे, तो डंकी के 2 दिन बाकी है। और फिर मैं मेरी फिल्म बना रहा हूँ। मैंने आई हैव रिटन एंड आई विल बी डायरेक्टिंग अ फिल्म, सो लेटर इन द ईयर दैट विल बी अंडर प्रोडक्शन। तो उसके लिए मैं बेचैन हूँ कि मैं बना लूँ, बचपन की एक ख्वाहिश है, पूरी कर लेता हूँ मैं। सर लास्टली सभी के लिए क्या मैसेज होगा? सभी आपको बहुत वोट दे रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। मैं जब इंडस्ट्री में आया था, मैंने सोचा मैं एक्टिंग करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं अपनी क्राफ्ट को सुधारते जाऊँ और एक और अच्छा एक्टर बनूँ। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि इतना ढेर सारा प्यार, दुनिया भर का प्यार मुझे मिलेगा। पूरी दुनिया से दुनिया भर का प्यार इंडस्ट्री में, हमारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग, कहीं पे भी जाता हूँ तो बहुत प्यार और इज्जत देते हैं, और वो अमूल्य है मेरे लिए। और दूसरी बात, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग हमेशा सोचते बचपन में या जवानी में कि मैं क्यों ना मैं एक्टर बनूं, और नहीं बन पाता। और बहुत कम लोगों के नसीब में ये होता है कि कैमरे के सामने खड़े रह के परफॉर्म करना। ये सबके नसीब में नहीं है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मेहनत करते रहूँगा एंड आई विल कंटिन्यू टू डू व्हाट आई हैव टू।
या इट डेफिनेटली लुक्स वेरी इंट्रीगिंग और मुझे स्पेस बहुत पसंद है, जिसे हम नोआर बोलते हैं, एक डार्क स्पेस जो होता है। एंड ऑल्सो गुरु मिहिर, दे बोथ आर माई फ्रेंड्स। हमने मिर्ज़ापुर पे साथ काम किया है, तो उन्होंने अगर कुछ चीज़ बनाई है तो उसको आके डेफिनेटली सपोर्ट करना बनता है। The tone of it, like I said, I really like the noir world, the dark space. Also, it's not too pronounced in the trailer. So, it keeps you guessing कि क्या हुआ है, क्या होने वाला है. Is the girl right? Is the father right? जितना मुझे ट्रेलर देके लगा. So I thought genuinely it's going to be an intriguing show. My projects, I'm here only to talk about Masoom. मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बाद में बात करेंगे. आप लोग प्लीज़ वॉच दिस शो ऑन हॉटस्टार. इट्स अ लवली शो. क्या बोलूँ यार, कौन सा बहुत तकलीफ़ होती है जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता को ना समझें. तो मेरे दोस्तों की योग्यता को समझिए एंड डू वॉच दिस शो. या थैंक यू.